गुलबर्गा शहर में आज ब्राह्मण समाज के तरफ से कमिश्नर ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इनको 10% EWS का वादा किया था, अभी तक इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके चलते आज ये लोग सड़कों पर उतरना पड़ा। इनका साथ देने के लिए GDS के यूथ लीडर श्री कृष्णा रेड्डी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। EWS ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು EWS ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಾರ್ದವರಿಗೆ ಜಾರಿ ತಂದು ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಜಾರಿ ತಂದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದೆ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ನೌಕರಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ BJP ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಇರಲಾರ್ದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಂತ ಅವ್ರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು 10%. ಅದರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾರಿ ತರದೆ ನಮಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಜಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕೇವಲ ಉಳಿದವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ 10% ಜಾರಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ 30ರಿಂದ 35 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಾವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಇದು ಜಾರಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಪೂರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ. BOI ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, BOI. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ. ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಬುರಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇನದ ಅಂದರೆ ಈ 75 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರಲಾರದಂಥ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. परसों तुम समाज में एक प्रोग्राम करते, समाज के नाम पे इलेक्शन का काम करने के लिए जा रहे. पहले 10% बिफोर इलेक्शन 10% EWS अगर ये समाज को लागू होगा तो जब आप ख्वाब देखना चाहिए दक्षिण मध्य क्षेत्र के अंदर, अगर ये समाज को 10% नहीं मिलेगा तुम्हारा हार पक्का है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ दत्तात्रेय पाटिल साहब को. हर टाइम तुम्हारे को ये समाज साथ देते आए. 5 इलेक्शन हुआ है तुम्हारे घर में, एक ही फैमिली से आप जीत लेते आए. जब जनता दल से बाई इलेक्शन में हम लोग आपको टिकट देने के बाद में भी ये समाज तुम्हारा हाथ पकड़ा था. उस टाइम पे ये समाज पार्टी नहीं देके तुम्हारे घर को देके तुम्हारे माताजी को देख के ये समाज जोड़ दिए. आज ये समाज के साथ तुम ना इंसाफी मत करो, इंसाफ दिलाओ ये समाज को. बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं. अगर ब्राह्मण समाज का अगर तुमको बदवा लगा तुम कहीं के भी नहीं रहते. मैं बोलना चाहता हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे ये लोगों के बीच कोई पार्टी का लीडर बन के नहीं आया हूँ. एक रायर भक्त का मैं एक भक्त बन के यहाँ पे आया हूँ. आज मैं बोलना चाहता हूँ वो पार्टी ये पार्टी नहीं. ये जो स्टेट के लीडर रहते, बड़े लोग रहते, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ. आज ये समाज पे एक मोहब्बत है, इनके ऊपर एक रेस्पेक्ट है बोल के मैं यहाँ पे आया हूँ. आज समाज वालों के साथ मैं ठहरूंगा. इसका इंसाफ मिलना चाहिए. अगर इंसाफ नहीं मिला आने वाले दिनों में इनके साथ हम जेल जाने के लिए भी तैयार है बोल के बोलना चाहता हूँ. सभी पत्रकर्ताओं को स्वागत करते हुए
अभी आज 10% ईडब्ल्यूएस के बारे में अपने पूरे ब्राह्मण समाज पूरे रोड पे आ चुके हैं अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने 10% ईडब्ल्यूएस के माफी और अपने ब्राह्मण समाज के लिए और भी कुछ भी तरक्की हो जाए और तरक्की होने के लिए उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए दिए हैं। लेकिन आज ये सरकार स्टेट सरकार ने हमारे को अभी 10% लागू करने के अभी सोच रहे हैं। ये 3 साल हो गए, तभी अभी 4 साल हुए तो भी अभी वो सोच रहे हैं, मगर सोचने में वक्त अभी बहुत कम है। मगर वो वक्त के अंदर वो जो निर्णय नहीं लिए और वक्त का इंतज़ार उन्होंने ब्राह्मण से करना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा उन्हें सोचना पड़ेगा। क्यों बोले तो आज यह ब्राह्मण युक्ति, ये ब्राह्मण संगठन और पूरे ताकत के साथ उभर रहा है। लेकिन ये इलेक्शन में ब्राह्मण की ताकत क्या है वो समझने के लिए आप मत सोचो, मगर समझ जब जागेगा तब आप समझेंगे। अभी आज 10% ईडब्ल्यूएस के बारे में अपने पूरे ब्राह्मण समाज पूरे रोड पे आ चुके हैं अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने 10% ईडब्ल्यूएस के माफी और अपने ब्राह्मण समाज के लिए और भी कुछ भी तरक्की हो जाए और तरक्की होने के लिए उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए दिए हैं। लेकिन आज ये सरकार स्टेट सरकार ने हमारे को अभी 10% लागू करने के अभी सोच रहे हैं। ये 3 साल हो गए, तभी अभी 4 साल हुए तो भी अभी वो सोच रहे हैं, मगर सोचने में वक्त अभी बहुत कम है। मगर वो वक्त के अंदर वो जो निर्णय नहीं लिए और वक्त का इंतज़ार उन्होंने ब्राह्मण से करना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा उन्हें सोचना पड़ेगा। क्यों बोले तो आज यह ब्राह्मण युक्ति, ये ब्राह्मण संगठन और पूरे ताकत के साथ उभर रहा है। लेकिन ये इलेक्शन में ब्राह्मण की ताकत क्या है वो समझने के लिए आप मत सोचो, मगर समझ जब जागेगा तब आप समझेंगे क्या है ब्राह्मण है बोलकर। जब परशुराम जब जागे थे, जब राम राम बोलते थे, मगर वक्त पे आ गया तो परशुराम बन गए हैं। वैसा ये इलेक्शन के टाइम पर हमारे को परशुराम बनने के लिए मौका मत दो। राम बनते हुए हम जाएंगे और आप भी हमारे साथ में रहना चाहिए, वरना नहीं रहे तो आप इसका भुगतना पड़ेगा। इसका वजन बहुत बड़ी है और आप इसको नज़रअंदाज करते हुए जो भी अभी आ रहा है समय अभी कम है, उस कम में 10% 10% ईडब्ल्यू जो करना है जो करिए, वरना नहीं करेंगे तो आगे बहुत आपके लिए बहुत तकलीफ है। ये बोलते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जब बम्बई सरकार से भी गुजारिश करता हूँ और यहाँ के लोकल एमएलए से भी मैं गुजारिश करता हूँ, कोई हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध नहीं है। जो भी हमारे को करते हैं वो कोई पार्टी का संबंध नहीं है, चाहे जेडीएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। जो हमारे ईडब्ल्यूएस 10% इम्प्लीमेंट करेगा वो उनके साथ हम रहेंगे, यही हमारी बात रहेगा। और जो अभी आज तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी हमारे को साथ नहीं देंगे तो आगे वो सोच ले क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर अभी तक हमारा भारतीय जनता पार्टी थे, अब सोचना पड़ेगा किसके साथ हम जाना है। वो सोचने के लिए आप हमारे को वक्त मत दो, अभी वक्त हो चुका है। अभी ये इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले ये 10% केवल 10% हमारे लिए ही आना और 10% में वो 2%